अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। मगरबी बंगाल में बीजेपी ने दीदी का तख्ता पलट दिया। तमिलनाडु में भी हैरत अंगेज नतीजा। अदाकार विजय की क़यादत में टीवी के पार्टी ने ज़बरदस्त बढ़तरी हासिल कर 140 असम्बली सीटों वाली केरला असम्बली से आई अच्छी खबर। कांग्रेस इत्तेहाद की हुकूमत साजी की जानिब मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं कदम। कांग्रेस हुकूमत किसानों से फसल न खरीद कर राह फरार अख्तियार करने की करी कोशिश। जब केसीआर इक़्तिदार में थे तो हुकूमत किसानों के लिए हमदर्द थी, साबिक़ा वज़ीर केटीआर का दावा। तेलंगाना से आज़मीन हज का पहला काफ़िला रवाना। रियासती वज़ीर अज़हरुद्दीन की मौजूदगी में 430 आज़मीन के लिए हज हाउस में भी विदाई तकरीब। अमरीकी सदर ट्रंप को नामुमकिन जंग या ख़राब डील में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। ईरानी पासदाराना इनकलाब का रद्द-ए-अमल। और ईरान के साथ बहुत मुस्बित बातचीत जारी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने किया फिर दावा। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों से। पूरा मुल्क जिन असम्बली इलेक्शन के नतीजों का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था वो मंजर आम पर आ रहे हैं। मगरबी बंगाल, केरला, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी के नतीजे हैं और आज ये जारी हो रहे हैं। एग्जिट पोल के अंदाज़ों को गलत साबित करते हुए तमिलनाडु में अदाकार विजय की क़यादत में टीवी की पार्टी ने ज़बरदस्त बढ़तरी हासिल कर ली और डीएमके के AIDMK को पीछे छोड़ दिया। उधर मगरबी बंगाल में बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस को सख्त टक्कर दी और अक्सरियत के निशान को पहले ही पार कर चुकी है। ममता ने लम्हे आखिर तक भी कारकुनों को मुतहरिक रखा और काउंटिंग के अख्ताम तक भी सेंटर्स न छोड़ने की बाकायदा अपीलें भी जारी की थी। The work behind this is nothing but our leader, and the people had the trust on our leader. It's a bondage between both leader and the people. That is what worked with us, worked to the state. I would say. Then this is what the trend is much expected by us. We have been telling that TVK will form the government. We will become the single largest party from the day one. From on the first public meeting held at Vikravandi, our leader declared this, and today it is happening, and the change is happening. People wanted a change. People are not happy. In fact, they are fed up with both ADMK and DMK, and they wanted a change. And the change is TVK and our leader. As of now, the trend has been showing that 83 with TVK, ADMK is 58, and trend shows that it may lead to coalition. Or what's your? The trend started with 0, now it's 100. So let us wait for the day to even to mature, and you will see there will not be any need for a coalition. That much I can assure you. We will form the government on our own. From day first, Vijay sir is saying that this election is between DMK versus TVK. TVK. Where you see ADMK is also gaining a momentum. No, let's wait. See, why we were saying that it's a fight between DMK and TVK? Because DMK was in power. And we have to fight only with the people, with the party who is in power. That is the reason, because we want to remove them from the power. That's why we fought with them. And we are winning it. So let us not worry about the ADMK or any other political parties right now. Because I have 100% confident that we will win with simple majority to form the government. There is no if and buts. It's very clear. It's a very clear mandate. There is no need for any other external support so far. Let us wait. How's the message and what's your? The message is very clear. People have put a full stop to the loot, to the corruption, and to the nepotism and family politics, dynastic politics. That's the end of it, and it's the end of DMK as well. There's been a talk again that ADMK and TVK may come and join post-election. There will be a lot of talk, sir. There will be a lot of narratives. There will be a lot of slandering. But you wait, we will form the government without any outside support. Okay. What's your message for the fans of TVK or Vijay? They are the citizens of Tamil Nadu and voters of Tamil Nadu. And more than thanks, it was a final chance for Tamil Nadu.
140 असेंबली सीटों वाले केरला असेंबली में कांग्रेस इत्तेहाद हुकूमत साजी की जानी मजबूती के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रुझानात में कांग्रेस इत्तेहाद ने 71 का जादुई नंबर भी हासिल कर लिया। सभी 140 असेंबली सीटों के रुझानात सामने आ गए और 85 सीटों पर कांग्रेस इत्तेहाद के उम्मीदवार आगे हैं। 50 सीटों पर LDF उम्मीदवार और 4 सीटों पर BJP उम्मीदवार सबकत में हैं। बकिया सीटों पर दीगर उम्मीदवारों ने बरतरी बना ली। इस दौरान कांग्रेस लीडर KC वेणुगोपाल ने पार्टी के शानदार मुजाहरे को देखते हुए केक काटा और एक दूसरे को कांग्रेस लीडरों ने इस मौके पर मुबारकबाद भी पेश की है। कांग्रेस के नौजवान रुकन पार्लियामान इमरान प्रतापगढ़ी ने केरल में कांग्रेस की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर किया है। उन्होंने कहा कि UDF ने बहुत शानदार मुजाहरा किया और कारकुनों ने भी खूब मेहनत की है। नहीं, हमने कोई मंत्रालय नहीं बांटा था, हमने बस खुशियां बांटी थी उस दिन 25 तारीख को, और हमने ये कह दिया था कि यहाँ पे UDF सेंचुरी लगा करके चुनाव जीतने जा रही है। आपको याद होगा अपनी पहली मीडिया बाइट में KC वेणुगोपाल जी ने कहा था कि हम सेंचुरी लगाएंगे। मैं लगातार वहां जहां भी कैंपेन में जा रहा था, हम जो कविताएं सुना रहे थे, हम जो प्रचार कर रहे थे, उसमें कहते थे कि UDF यहाँ पे सेंचुरी लगाने जा रहा है। तो हमने जो उम्मीद की थी जनता से, जनता ने हम पर भरोसा किया, और जिस तरह से पिछले 10 साल में मोदी के साथ गठबंधन करके वहां पर LDF सरकार चला रही थी, उसकी हार हुई है और कांग्रेस और UDF की एकजुटता की जीत हुई है, राहुल गांधी जी की जीत हुई है, कांग्रेस की जीत हुई है। बहुत बधाई, बहुत खुश हैं हम सारे लोग कि हमारा एक और मुख्यमंत्री बढ़ने जा रहा है और एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य में हमारा एक मुख्यमंत्री बढ़ने जा रहा है। हमने वहां पे क्लीन स्वीप किया है, मालाबार रीजन में हमने क्लीन स्वीप किया है, हमने मलप्पुरम में क्लीन स्वीप किया है UDF ने। देखिए, वेणुगोपाल जी को एक बात के लिए तो उनका विशेष शुक्रिया बनता है कि जिस तरह से उन्होंने ग्राउंड पे उतर करके नाराज लोगों को मनाया, रूठों को मनाया, जिस तरह से ग्राउंड पे उतर के मेहनत की, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उनको इस चीज के लिए शुक्रिया भी कह रहा है, सैल्यूट कर रहा है कि उसी तरह से हर राज्य में जाहिर सी बात है किसी न किसी नेता को उतर करके जिम्मेदारी लेकर के चुनाव लड़ना पड़ेगा। चुनाव की रणनीतियां बदल चुकी हैं, तो उनको बहुत बधाई इस बात की। दूसरी बात यह कि ये कलेक्टिव जीत है, किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं है, ये UDF की कलेक्टिव जीत है। जो एकजुटता, मैं शुरू से अपने बयानों में कहता रहा हूं कि जितना एकजुट होकर के केरला में कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, इतनी ही एकजुटता अगर सारे राज्यों में दिखा दे तो कांग्रेस पार्टी को कोई हरा नहीं सकता है। आप नारा भी दे रहे तो कुछ आपने मलयालम भी सीखी थी? हाँ, मैंने थोड़ी थोड़ी मलयालम सीखी थी। केरलम जयकुम UDF नैकुम, ये हम लोगों का नारा था। मैंने इसे बाद में कविता बनाया था कि केरलम जयकुम UDF नैकुम, मिलके यही नारा लगाएंगे हम तुम, केरलम जयकुम UDF नैकुम। इस चुनाव में LDF हो जाएगी गुम, केरलम जयकुम UDF नैकुम। तो ये नारा, ये तेलंगाना में जिस तरह से हमने एक नारा लगाया था बाय बाय KCR, उस तरह से एक कविता के तौर पे यहाँ भी एक नया नारा बना था। और मुझे लगता है कि केरला की जनता ने अर्ध हिंदी, उर्दू और मलयालम बोलने वाले एक युवा की बातों। केरल के कांग्रेस लीडर रमेश ने भी कहा है कि पार्टी क़यादत तय करेगी कि कौन केरल का अगला चीफ मिनिस्टर बनेगा। आइए देखते हैं केरल के इलेक्शन के नतीजों पर उनका ये रद्द-ए-अमल। Gandhi's programs helped us to get a good victory in this election, and we are thankful to the Congress High Command for giving us freedom and liberty for the proper organizing this program, various programs for this election. The 5 guarantees announced by Sri Rahul Gandhi, the 5 guarantees announced by Sri Rahul Gandhi in Trivandrum helped us to get this victory. And this is a joint effort. This victory is a joint effort of all congressmen and leaders as well as the UDF partners. So we are all thankful to everybody. As the chairman of the campaign committee, I would like to express thanks to all the Congress workers, leaders and the UDF partners and their leaders. And the joint effort of all the leaders has given this victory. And we will continue to do better administration for the state of Kerala, and the people's dreams and their thinking
will be translated into reality by our government. And once again I express deep gratitude to the people of Kerala for giving this kind of a victory for us. Is there any kind of vote consolidation in favor of the UDF or any community in this election? The positive agenda proposed by the Congress-led UDF as well as the anti-incumbency of this government both helped us to get this kind of a majority. Sir, in 5 decades, this is the first time that left government is not in India. What you have to say This on is that? the last government of the Communist Party in India was Pinarayi Vijayan's government. It is now lost this election, and I think that they will learn lessons from this defeat. Their authoritarian attitude and their dictatorial policies had led to this kind of a rout. कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने केरल में यूडीएफ के शानदार मुजाहिर पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि अवाम ने बड़ा सोच समझकर अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया है। Premature because they've counted a couple of rounds, there'll be 8-10 rounds to count. But I just want to say that I think it's very clear that the Kerala electorate has to be congratulated. They understand the issues. Even if they like a particular MLA or minister or whatever, as an individual, they realize that casting a vote there means casting a vote for a continuation of misgovernance. And for that reason, they have decided it's time for a change. And even people whose individual popularity we are not disputing seem to be behind. This, I think, is a very good sign. And for us in the UDF, we are not going to make any premature celebrations, but I can see that it'll take already a major reversal for things to look very different. Let's talk again in an hour or so, hour and a bit, and we'll certainly, I think, if we get a confirmation of this trend with more than half the votes counted in most places, then I think we are heading very clearly forward. For the moment, it's a good beginning. And if UDF comes to power, will you be a contender for the CM post? No, I'm not afraid. I think right now we've got enough contenders. What matters now is there should be a change of government, a change of policy, and a revival of Kerala. I think the entire thing, I hope that I can count on my ideas also being of some use to the new government, but my message will certainly be development, completely changing the disastrous fiscal situation, really doing essential work to make Kerala once again a haven for investment so that we can grow, generate jobs for our people, and prevent a situation where our young people are fleeing the state because they feel they have no possibilities. And for the first time, NDA is keeping a lead in 4 or 5 constituencies from the beginning. How do you see this? I mean, is there a three-tier fight coming to Kerala? I think it will be interesting to see what comes out of all of this. At the moment, we've always known that NDA would be viable only in a handful of constituencies. That is, we never thought that they had any serious contention chance beyond 4 or 5. And even there, we thought that they could end up second and not first. So it's not that we were in any case expecting to concede very much to them. But it's early days. Let's see in the next few hours how it evolves. और बढ़ते हैं चंद अहम रियासती खबरों की जानिब। कांग्रेस हुकूमत किसानों से फसल न खरीदते हुए राह फरार इख्तियार करने की कोशिश में है। जब केसीआर इक़्तिदार में थे तो हुकूमत किसानों के लिए बहुत कुछ काम कर रही थी। तेलंगाना भर में 9,500 खरीदारी मराकज़ होने चाहिए, लेकिन अब तक सिर्फ 6,000 मराकज़ ही खोले गए। KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि महकमा सिविल सप्लाई में बदनवानियों की वजह से आज कांग्रेस हुकूमत किसानों से रास्त तौर पर अनाज खरीदने से खासिर है। ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచన ఒకటే కనబడతా ఉన్నది। ప్రభుత్వం ఏమనుకుంటుందంటే అసలు ఈ జోకుడు కొనుడు ఇవి బంద్ పెడితే మరి మద్దతు ధర ఇచ్చే బాధ తప్పుతుంది, బోనస్ ఇచ్చే బాధ తప్పుతుంది, లేకపోతే జోకితే కొంటే మళ్ళీ రైతుకు పైసలు ఇవ్వాలి, మళ్ళీ రైతు కోపానికి వస్తాడని చెప్పి ఇవాళ మొత్తంగా ఎక్కడా కొనుగోలు చేయకుండా తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నది। మొత్తం అన్ని పంటలు ఇడిచిపెట్టినారు, అన్ని వరి, మొక్కజొన్న, అదే విధంగా తెల్లజొన్న, శనిగలు, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏ పంట కొనుగోలు కూడా సరిగ్గా జరగడం లేదు। కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు మా గౌరవ ఎమ్మెల్యేలు ఒక మాట చెప్తే రైతుల నుంచి విజ్ఞప్తి వస్తే ఎటువంటి కండిషన్లు పెట్టకుండా, ఎట్లాంటి ఆంక్షలు పెట్టకుండా మొత్తం సంపూర్ణంగా పంట మొత్తం ప్రభుత్వమే కొంటుండే। కానీ ఇవాళ పరిస్థితి ఈ యాసంగి సీజన్ లో 95 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వరి కొనుగోలు చేస్తామని చెప్పి ప్రభుత్వం చెప్పింది। కానీ ఈ రోజు వరకు 4 మే 2026 వరకు ఇప్పటి వరకు 9 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు మాత్రమే కొన్నారు। వాళ్ళకు కూడా 1 రూపాయి కూడా ఇంతవరకు ఒక్క రైతు కూడా వేయలేదు। మొత్తం రాష్ట్రం మొత్తం 9,500 కొనుగోలు కేంద్రాలు ఉండాల్సి ఉంటే ఈ రోజు వరకు
6,000 మాత్రమే తెరిచినారు. ఏది ఇక్కడ ఇప్పుడు సంగారెడ్డి జిల్లాలో ఇప్పుడే సోదరుడు రాజశేఖర రెడ్డి అనే రైతు చెప్తున్నాడు, ఒక్కటంటే ఒక్కటి వరి కొనుగోలు కేంద్రం ఈ రోజు వరకు పెట్టలే. అంటే ఎంత అన్యాయమైన పరిస్థితి అంటే సెంటర్లు పెట్టరు, పెడితే రైస్ మిల్ అలాట్ చేయరు. అట్లాగే ఆ సెంటర్ లో గన్ని బ్యాగులు దొరికాయి, సుతిల్ దారం ఉండదు. అకాల వర్షాలతో నష్టం నిన్నైతే కప్పెతందుకు టార్పాలిన్లు లేవు. అంటే ఉద్దేశం ఏంది ప్రభుత్వం అందంటే అడ్డికో పావు షేరుకో రైతు బయటికి పోయి మళ్ళీ అమ్ముకోవాలి, దళారుల పాలు కావాలి ధాన్యం. మొత్తానికైతే రైతుకు మద్దతు ధర ఇచ్చే పరిస్థితి ఉండవద్దు అని చెప్పి ఇవాళ మొత్తంగా రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పనిచేస్తా ఉన్నది. దీనికి ప్రధానమైన కారణం సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్. और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी के पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912041041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। तलबिया यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की गूंज में तेलंगाना से आज़मीन हज का पहला काफ़िला हज हाउस नामपली हैदराबाद से रवाना हो गया। 430 आज़मीन पर मुश्तमिल काफ़िला पीर की सुबह 5 बजे सऊदी अरब के लिए रवाना हुआ। इस मौके पर रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन, वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी, उलमाए कराम और हज कमेटी के दीगर अहदेदारान भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर ने आज़मीन से अपील की कि वो हज के दौरान ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारें, मुक़द्दस मकामात का एहतराम करें और सोशल मीडिया और वीडियोग्राफी से इज्तनाब करें। उन्होंने कहा कि आज़मीन अल्लाह के मेहमान हैं, उनकी खिदमत हुकूमत की जिम्मेदारी है। रवानगी के मौके पर जज्बाती मनासिर भी देखे गए। रवां साल हैदराबाद इम्बार्केशन पॉइंट से लगभग 9,960 आज़मीन हज रवाना होंगे। जो हज पे जा रहे हैं हाजी हैं, उनको सलाम पेश करता हूँ और ज़्यादा वक्त नहीं, क्योंकि आप लोग बिल्कुल बस में बैठ कर जाना बैठना है। आपसे दो तीन चीजें यही कहूँगा कि अल्लाह ताला ने आपको इस मुकाम पर ले जाना हज करने की आपको तौफीक अता फरमाई है, तो इसको ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे ख्याल में बहुत से लोग पहली बार आए हैं मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा। और मैं ये कहूँगा कि हज करिए, आप अच्छी तरह से आप अपनी इबादत करिए, अच्छी तरह से हज करिए। और जैसा मैं अमूमन ये देखता हूँ कि हम लोग ज़्यादातर इबादत करने से ज़्यादा हम लोग हमारे फोटो देना चाहते हैं और व्हाट्सएप में फोटो देना चाहते हैं, क्योंकि बार बार ऐसा होता है कि आप बिल्कुल दावा भी कर रहे हैं। तो मैंने देखा है लोग अपने व्हाट्सएप लेकर वीडियो ऑन करके चलते हैं और अभी भी फिल्म में भी जाते हैं, जब अंदर भी जाते हैं मुबारक करने ठहर के भी रहते, क्योंकि बहुत बड़ा मेरे ख्याल से मैं जो सोचता हूँ ये बहुत बड़ा गलत काम है, ये बेहुरमती है। और बिल्कुल देखिए वहाँ पे मकान है, बिल्कुल अदब का मकान है। दरअसल में जो मदीना मुनव्वरा में कोई अच्छा मकान है, एहतराम करना चाहिए और ज़्यादा रूस में बात करने की भी इजाज़त है। लेकिन मैं आप लोगों को बहुत मुबारकबाद देता हूँ और ये चाहे हमारे साथ हम पूरी तरह से जो चाहे हम लोग घर में अभी भी सहूलत है, चाहे हम लोग रहने के लिए जो हर कमेटी तरीके से आप लोग का घर में अरेंजमेंट किया है और आप लोग जाएंगे तो यहाँ से हम घर पर बैठ कर जाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ से पहले तो क्योंकि यहाँ पे होता था, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से वो सेफ्टी यहाँ पे बैन नहीं होगा। मुशरबाद इलाके में प्लास्टिक के एक स्क्रैप गोदाम में आग भड़क उठी। किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है, लेकिन बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुए हैं। आज आग बुझाने वाले अमले ने फौरी तौर पर कार्रवाई की और आग पर मुकम्मल तौर पर काबू भी पा लिया गया है। कलेक्टर और दीगर अहदेदारों ने इलाके का दौरा किया और आग लगने के बाद लगभग 8 घरों को नुकसान पहुँचने की भी तस्दीक की है। हमारे नुमाइंदे फ़हीम अंसारी के मुताबिक हुकाम ने नुकसानात का भी इस मौके पर जायज़ा लिया है।
पहाड़ी शहर हैदराबाद के करीब जलपरी इलाके में ऑक्सीजन टैंकर्स फट पड़ने की वजह से कम 3 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और तहकीकात का भी बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। तीनों जख्मी अफराद को हस्पताल रवाना कर दिया गया। इस वाक़े के बाद मुकामी लोगों में भी खौफ व हिरास का माहौल देखा गया। और हवाई नाज़रीन रुख करेंगे चंद अहम बैनुल अक़वामी ख़बरों की जानिब। ईरानी पासदार इनक़लाब गार्ड्स ने कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप को नामुमकिन जंग या ख़राब डील में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। पासदार इनक़लाब गार्ड्स ने कहा कि ईरान ने अमरीका और इसराइल की जारहियत के मुस्तक़िल ख़ात्मे के लिए जामे तजवीज़ दी है। अमरीका इस मामले से निकलने के लिए राहें तलाश कर रहा है। ईरान ने इस तजवीज़ का मामला दोबारा ट्रंप के सामने रखा। ईरानी पासदार इनक़लाब के मुताबिक ईरान ने पेंटागन को नाकाबंदी से मुताल्लिक़ डेडलाइन भी दी। चाइना, रूस और यूरोप का वाशिंगटन के खिलाफ लहजा भी बदल रहा है। अमेरिका के फैसले करने की गुंजाइश महदूद हो गई है। इस दौरान अमेरिकी सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि आज से अमेरिका अपना हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को निकालने में भरपूर मदद करेगा। ईरान की जानिब से रुकावट डालने की कोशिश की गई तो सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप ने इस नौयत की धमकियां भी दी हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुस्बित बातचीत जारी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी प्याम में लिखा कि मेरे नुमाइंदे ईरान के साथ मुस्बित बातचीत कर रहे हैं और ईरान से बातचीत का अमल सबके लिए इंतहाई नतीजा खेज साबित हो सकता है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपना हुर्मुज़ में जहाज़ों की नकल हरकत बहाल करने का भी ऐलान किया। ट्रंप ने लिखा कि दुनिया के कुछ ममालिक ने हमसे अपने जहाज़ निकालने के लिए मदद मांगी है और ये ममालिक के जहाज़ हैं जो मशरिक़ वस्ता में हालिया तनाज़े में शामिल भी नहीं है। अपने नुमाइंदों से कहा कि इन ममालिक को बताएं कि उनके फंसे जहाज़ और हमले को आपना हुर्मुज़ से निकालने की बेहतर कोशिश की जाएगी। हुर्मुज़ से जहाज़ की आज़ादाना नकल हरकत का मकसद इन कंपनियों और ममालिक को रिलीफ देना है जिन्होंने गलत काम नहीं किया। ट्रंप ने खबरदार किया कि इस इंसानी हमदर्दी के अमल में किसी भी किस्म की रुकावट डालने पर सख्त जवाब देने के लिए अमेरिका तैयार रहेगा। पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ईरानी हमनसब अब्बास इराक़ी से टेलीफोन पर बातचीत हुई जिसमें ख़त्ते की सूरत हाल, जारी कशीदगी और अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तानी कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंद्राबी की जानिब से बयान में बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ी से गुज़िश्ता रात तफसीली बातचीत की जिसमें ख़त्ते की मजमूई सूरत हाल, मौजूदा कशीदा सूरत हाल और अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई है। बताया गया कि इसहाक़ डार ने खत्ते में कशीदगी के खात्मे, फ़रीक़ैन के दरमियान बातचीत के फ़रोग़ के लिए जारी सिफारती कोशिशों से भी आगाह किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ी ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना सालिसी की कोशिशों की भरपूर अंदाज में सताइश की है। मसाइल का पायदार हल बातचीत और सिफारतकारी के ज़रिए मुमकिन करार दिया गया। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में देरपामन, इस्तेहकाम और बाहमी एहतराम पर मबनी ताल्लुक़ात के फ़रोग़ के लिए अपनी कोशिशों का सिलसिला जारी रखेगा। दुबई एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक 28 फरवरी से 30 अप्रैल के दौरान 32,000 से ज़्यादा फ़्लाइट्स की आमद रवानगी हुई है। 2,13,000 टन कार्गो भी दुबई एयरपोर्ट ने हैंडल किया है। हुकाम ने कहा कि बहरान के बावजूद आलमी परवाज़ों का सिलसिला जारी रखा गया और इस दौरान 60 लाख मुसाफिरों ने दुबई एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया है। दुबई एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक 2026 की पहली तिमाही में 1,86,00,000 मुसाफिरों ने एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया, लेकिन गुज़िश्ता साल की पहली तिमाही मुकाबले में मुसाफिरों की तादाद जंग और मौजूदा सूरत हाल की वजह से कम रिकॉर्ड हुई है। एयरपोर्ट हुकाम ने कहा है कि इलाकाई कशीदगी की वजह से मुसाफिरों की तादाद में आर्जी कमी है। दुबई के दूसरे फ़िज़ा एविएशन के मरकज़ अल मखदूम एयरपोर्ट पर अभी तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। मगरबी बंगाल में बीजेपी ने दीदी का तख्ता पलट दिया। तमिलनाडु में भी हैरत अंगेज नतीजा, अदाकार विजय की क़यादत में टीवी के पार्टी ने ज़बरदस्त बढ़तरी हासिल कर 140 असम्बली सीटों वाली केरला असम्बली से आई अच्छी खबर। कांग्रेस इत्तेहाद की हुकूमत साजी की जानिब मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं कदम। कांग्रेस हुकूमत किसानों से फसल न खरीद कर राह फरार अख्तियार करने की करी कोशिश। जब केसीआर इक़्तिदार में थे तो हुकूमत किसानों के लिए हमदर्द थी, साबिक़ा वज़ीर KTR का दावा। तेलंगाना से आज़मीन हज का पहला काफ़िला रवाना। रियासती वज़ीर अज़हरुद्दीन की मौजूदगी में 430 आज़मीन के लिए हज हाउस में हुई विदाई तकरीब। अमेरिकी सदर ट्रंप को नामुमकिन जंग या ख़राब डील में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। ईरानी पासदाराना इनक़लाब का रद्द-ए-अमल।
और ईरान के साथ बहुत मुस्बित बातचीत जारी है, अमेरिकी सदर ट्रम्प ने किया फिर दावा। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।